برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی میں بہتری آئی ہے۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 11 روپے کی کمی آئی ہے۔ مرغی کا گوشت 602 روپے سے سستا ہو کر 591 روپے کلو ہو چکا ہے۔ انڈوں کی قیمت میں بھی 15 روپے کمی آئی ہے۔ قیمت 275 روپے درجن مقرر کی گئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں عبدالقادر سے جانیں گے۔ جی آگاہ کیجیے گا عبدالقادر۔ جی بالکل، آج صبح سویرے جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری مرحلہ میں جاری کیے گئے اس میں برائلر کی قیمتوں میں بھی کمی جو ہے وہ کی گئی ہے، جبکہ انڈوں کی قیمتوں میں 15 روپے فی درجن تک کی کمی کی گئی ہے۔ برائلر کی کھپت جو ہے وہ غیر معمولی طور پر کم ہو چکی ہے، کیونکہ برائلر جو مہنگا ہے وہ لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہے، اور ایک عام صارف کی جانب سے برائلر کی خریداری جو ہے وہ غیر معمولی طور پر ترک کی گئی ہے، جس کے بعد ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بہتری آئی ہے، اور اب گزشتہ 4 روز سے برائلر کی قیمتوں میں مسلسل کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ وہی برائلر ہے جسے مصنوعی قلت پیدا کر کے 650 روپے فی کلو تک کی سطح پر پہنچا دیا تھا، لیکن اب بتدریج اس کی قیمتوں میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آج برائلر 11 روپے فی کلو تک سستا کیا گیا ہے، اور 602 روپے سے قیمت کم کر کے 591 روپے فی کلو مرغی کے گوشت کی قیمت جو مقرر کی گئی ہے۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 7 روپے تک کی کمی کی گئی۔ ہول سیل زندہ برائلر 386، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 394 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی جو قیمتیں کم ہونے کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کیونکہ موسم میں واضح تبدیلی کے بعد جو ہے وہ انڈوں کی کھپت جو ہے وہ کم ہو چکی ہوئی ہے۔ عمومی طور پر انڈوں کا استعمال جو ہے موسم سرما میں زیادہ کیا جاتا ہے، لیکن موسم گرما میں انڈوں کی جو سیلز ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب شہریوں کی جانب سے شدید گرمی میں انڈوں کا استعمال جو ہے وہ کم کیا جا رہا ہے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں اب یہ بہتری آئی ہے، اور قیمتیں 15 روپے فی درجن تک کم کی گئی ہیں۔ 290 روپے سے سستے کر کے انڈے جو ہے وہ 275 روپے فی عبدالقادر کہیے گا کہ 591 جو ہے یہ بھی کوئی مناسب ریٹ نہیں ہے۔ ذرائع کیا کہتے ہیں کہ مرغی اپنے ریٹ پر کب واپس آ جائے گی؟ جی بالکل، اس حوالے سے جو مارکیٹ ذرائع ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ اگر شہریوں کی جانب سے برائلر جو ہے وہ اس کی کھپت کم کی جا رہی ہے یا برائلر کی خریداری جو ہے وہ کم کی جا رہی ہے، تو برائلر مافیا جو ہے وہ بھی متحرک ہے، اور ان کی جانب سے بھی سپلائی جو ہے اس میں بتدریج کمی کی جا رہی ہے، تاکہ یہ قیمتیں جو ہیں وہ اپنی اصل جگہ پر نہ پہنچ سکیں، کیونکہ یہ وہی برائلر ہے جو کہ 350-400 روپے فی کلو تک جی مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا تھا، لیکن مصنوعی قلت پیدا کر کے ایک آرٹیفیشل قیمت جو ہے وہ بنائی گئی ہے، جس کے بعد قیمتیں مسلسل بلندی کی طرف جا رہی ہیں۔ اب بھی برائلر جو ہے وہ 591 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے، تو لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہے، اور جو پرچون سیلز ہیں وہ تو 30 سے جو ہے وہ 40% تک رہ چکی ہے، کیونکہ 60 سے 70% تک سیل جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہوئی ہیں۔ ہم جو اس حوالے سے دکاندار ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ جو برائلر کی قیمتیں ہیں وہ آنے والے دنوں میں توقع یہی کی جا رہی ہے کہ مزید کم ہوں گی، لیکن جو برائلر مافیا ہے اس کی جانب سے اچانک جو ہے مصنوعی قلت پیدا کی جاتی ہے، اور مال روک کر قیمتوں میں غیر معمولی طور پر اضافہ کیا جاتا ہے۔ جب تک انتظامیہ اس میں جو ہے وہ سنجیدگی سے توجہ نہیں دے گی، قیمتیں جو ہیں وہ 450 یا 500 روپے فی کلو کی سطح پر نہیں پہنچ سکے گی۔ ٹھیک ہے، جب تک انتظامیہ توجہ نہیں دے گی ریٹس بڑھتے جائیں گے۔ عبدالقادر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ عمران نیازی نے جو ملک کو نقصان پہنچایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ 9 مئی کے ذمہ داران قانون کی گرفت سے بچ نہیں پائیں گے، کسی بے گناہ سے زیادتی نہیں ہوگی۔ کابینہ نے کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 2017 کے تحت آڈیو لیکس کمیشن قائم کیا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں وفاقی وزراء اور لیگی رہنماؤں کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وفاقی وزیر مصدق ملک، معاون خصوصی عطا تارڑ اور خواجہ سلمان رفیق سمیت دیگر شریک ہوئے۔ اجلاس میں معاشی، سیاسی اور قانونی معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ سامنے آنے سے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اعظم نذیر تارڑ نے سپریم کورٹ میں جاری مقدمات بارے بریفنگ دی۔ کہا کہ کمیشن آڈیوز کی حقیقت جاننے کے لیے ان کا فرانسک آڈٹ کروا سکتا ہے۔ دوسری جانب ایوان وزیر اعلیٰ میں امن و امان کے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 9 مئی کے ذمہ داران قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ عمران نیازی نے وہ کر دکھایا جو 75 سال میں دشمن نہ کر سکا۔ اداروں میں دراڑیں ڈالنے والے ملک کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے۔ کسی بے گناہ سے زیادتی نہیں ہوگی، کوئی مجرم سزا سے بچ نہیں پائے گا۔ عمران نیازی کے حکم پر ان کے جتوں نے ملک دشمنی کی اور بدقسمتی سے وہ کام کر دکھایا جو 75 سال میں دشمن نہ کر سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ مہنگائی کے اس دور میں غریب کو بڑا ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद। शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की और मुलाकात में 9 मई वाक़यात और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इस हवाले से यासीन की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन ने जिना हाउस पर हमले की मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि शरपसंद अनासिर को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई वाक़यात की शफाफ तहकीकात की जाएंगी, किसी बेगुनाह को इसमें मुलविस नहीं किया जाएगा। 9 मई वाक़यात से कौम के सर शर्म से झुक गए हैं। चौधरी शुजात ने कहा कि हर मुहिब वतन कौमी नदामत का बायस बनने वाले शरपसंदों की सजा चाहता है। शोहदा के अहले खाना के दिल को जो ठेस पहुंची है उसका अजाला किया जाए। वज़ीर आज़म से मॉडल टाउन में साबिक रुकने पंजाब असम्बली ख्वाजा सलमान रफीक ने भी मुलाकात की। पंजाब में सियासी सूरत हाल और पार्टी के तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं कि ऐसा पाकिस्तान देखना चाहता हूँ जहाँ लोग महफूज रहा करें। पाकिस्तान को बचाना है तो बलोचिस्तान को बचाने की फ़िक्र करें। तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठ कर मसाइल का हल तलाश करें। रिपोर्ट देखिए। बलोचिस्तान के 3 रोज़ा दौरे के बाद अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। कारकुनों की कसीर तादाद ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में सिराजुल हक ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त हुक्मरानों की नाअहली की वजह से जल रहा है। एक तरफ बदअमनी की आग है और दूसरी तरफ महंगाई की। ऐसा पाकिस्तान चाहता हूँ जहाँ लोग भूख से बदहाल होकर खुदकुशी न करें, जहाँ गरीब आदमी को रियासत की तरफ से हुकूक मिले। मैं ऐसा पाकिस्तान चाहता हूँ जिसमें लोग भूख से बदहाल होकर खुदकुशी करने पर मजबूर ना हो। मैं ऐसा पाकिस्तान चाहता हूं जहां गरीब आदमी को रियासत और हुकूमत की तरफ से वही हुकूक मिले जो एक सदर पाकिस्तान और वजीर आज़म पाकिस्तान को रियासत देती है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि बलूचिस्तान धमाके के बाद सब ने खैरियत दरियाफ्त की। 3 दिन वहाँ रहा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने फ़ोन नहीं किया। हम बलूचिस्तान के अवाम की तर्जुमानी के लिए खड़े हैं। कैमरामैन फ़ख्र अब्बास के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोन पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की खैरियत दरियाफ्त की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि तहकीकात मुकम्मल होते ही ज़िम्मेदारों का तयन करके ज़िम्मेदार अनासर को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। फ़ोन पर दोनों रहनुमाओं ने मुल्क में बदअमनी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा है कि मेरी ज़िंदगी अकामत दीन की जदोजहद के लिए वक्फ़ है। खुदकश धमाके के ज़ख्मियों में मुलाकात किया और सब्ज़ के हवाले से बुलंद किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि दहशतगर्दी की हर किस्म के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सिराजुल हक ने नेक तमन्नाओं के इजहार पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि मुल्क में अजमत के निशान जिना हाउस पर हमला करने वाले बलवाइयों ने दुश्मन वाला काम किया है। हमले में मुलव्वस शरपसंदों को आर्मी एक्ट के तहत कोर कमांडर हाउस में अदालत लगाकर सरेआम सजा दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी ताहिर महमूद अशरफी का उलमा के हमरा जिना हाउस लाहौर का दौरा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर महमूद अशरफी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी रेड लाइन हमारा दीन, वतन और पाक फौज है। 9 मई के वाक़यात पर मुल्की सलामती के इदारे खामोश हैं तो इसे कमजोरी न समझा जाए। जलाओ घेराव के बाद अब पाकिस्तान मजीद मजबूत होगा। इलेक्शन न होने का मतलब ये है कि तनसीबात को आग लगा दें। जिसने भी ये काम किया है, हमारा मुतालबा ये है, मैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल और मुल्क के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख की तरफ से ये मुतालबा करता हूँ कि इसी जना हाउस में कोर्ट लगाई जाए और सरेआम इनको सजाएं दी जाए। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने मजीद कहा कि जो लोग दानिस्ता और गैर दानिस्ता हमले में इस्तेमाल हुए, उन्होंने दीन और फौज से मोहब्बत नहीं की। किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलेगी, जबकि कोई गुनहगार सजा से नहीं बच पाएगा। जो दुश्मन मुल्क न कर सका वो अपने बलवाइयों ने कर दिखाया। पाकिस्तान की फौजी क़यादत उस वक़्त फैसला कर लेती तो कोई मुश्किल काम नहीं था इन बलवाइयों को रोकना। ये दहशतगर्द नहीं है, ये दहशतगर्दी के अजीम और मुनज़्ज़म तरीन साजिश थी। ये मकरूह तरीन दहशतगर्द है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ताहिर महमूद अशरफी ने ज़ल्मे खलीलज़ाद को आड़े हाथों लिया। बोले उसके मुंह से कभी किसी ने अफगानियों, कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक की बात नहीं सुनी। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत पंजाब भर में सरकारी और निजी इदारों पर हमले, तोड़ फोड़, तशद्दुद और जलाओ घेराव का मामला है। लाहौर और पंजाब भर से अब तक गिरफ्तार शरपसंदों की तादाद 3800 से ज़्यादा हो चुकी है।
तफसीलात के मुताबिक लाहौर से अब तक 2000 के करीब शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस की जानिब से रात गए भी कारकुनों और रहनुमाओं के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। शरपसंद अनासर की पुरतशद्दद कार्रवाइयों में पंजाब भर में 162 पुलिस अफसरान और अहलकार जख्मी हो चुके हैं। पंजाब पुलिस के ज़रिए इस्तेमाल 97 से ज़ायद गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई है। पुलिस स्टेशन और दफातर समेत 22 सरकारी इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचाया गया है। जिना हाउस पर हमला केस में अहम पेशरफ सामने आ चुकी है। पुलिस ने एक अहम हमलावर की शनाख्त कर ली है। मियाँ फारूक नज़ीर नामी डेवलपर लाहौर कैंट का रिहायशी है। पुलिस राय का कहना है कि 9 मई को मियाँ फारूक रैली के साथ जिना हाउस किया। मियाँ फारूक तमाम तर सानिया की वीडियोस अपने मोबाइल से बनाता रहा। पुलिस ने तमाम अहम वीडियोस हासिल कर ली हैं। वीडियोस में देखा जा सकता है कि शरपसंद मियाँ फारूक हुकूमत को ललकार रहा था। पुलिस ने मियाँ फारूक की गिरफ्तारी का टास्क तमाम पुलिस रेडिंग टीम्स को दे दिया है। तो दूसरी जानिब जमान पार्क से मुल्क का बंद रास्ता खोल दिया गया है। ट्रैफिक रवादवा है। जमान पार्क की सिक्योरिटी पुलिस एहलकारों ने संभाल ली है। जमान पार्क में ज़िले इंतज़ामिया का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। महीनों बाद जमान पार्क को मुकम्मल तौर पर पुराने रंग में ढाल दिया गया है। तमाम इदारों को अपना काम तसल्ली बख्श किया है, जबकि LDMC एंटी इंक्रोचमेंट और LDA ने सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। ग्रीन बेल्ट भी बहाल कर दी गई हैं। हल्का अरबाब ज़ौक़ के वफ़द ने जिना हाउस का दौरा किया है। 9 मई को होने वाले जलाओ गिराव और नुकसान की शदीद मज़म्मत की गई है। शोहरा और अतबा का ये कहना था कि जिना हाउस की मौजूदा हालत देखकर दिल खून के आंसू रो रहे हैं। मुबीन हैदर की रिपोर्ट देखिए। 9 मई के अफसोसनाक वाक़े पर अहले इल्म व अदब भी अफसरदा खातिर। हल्का अरबाब ज़ौक़ के मेम्बरान और सुंदस फाउंडेशन के अराकीन ने जिना हाउस का दौरा किया। अदीब व शोरा ने शरपसंदों की भरपूर मजम्मत की। सदर हल्का अरबाब ज़ौक़ एजाज रिजवी का कहना था कि ऐसा पूरी प्लानिंग और साजिश के तहत किया गया। यहाँ के हालात देखकर इंतहाई अफसोस हुआ है और हमें ये बहुत इस चीज़ पे बहुत गौर करना चाहिए कि वो लोग कौन हैं कि जो हमारी अफवाज और आवाम के दरमियान एक फासला पैदा कर रहे हैं। उन लोगों से हमें होशियार रहना चाहिए। सीनियर नायब सदर हल्का अरबाब ज़ौक़ फरहत अब्बास शाह बोले, दिल खून के आंसू रो रहा है। हमें वतन अजीज़ को अपनी रेड लाइन करार देना होगा। हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं, हम तकलीफ़ में हैं और शायर अदीब जो है वो पुरअमन पाकिस्तान का ख्वाहिशमंद है। हम ये चाहते हैं कि ये जो अपनी अपनी रेड लाइन बनाई गई है इससे हमें माफ़ करें और पाकिस्तान को रेड लाइन बनाएं। शोरा और उदबा का कहना था कि हम पाक फौज के हम कदम हैं और हमेशा रहेंगे। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। पाक फौज से इजहार यकजहती। अवामी रिक्शा यूनियन के लाहौर प्रेस क्लब से अमरीकी कौंसलेट तक इस्तेकाम पाकिस्तान रैली निकाली गई है, जबकि सिविल सोसाइटी, वकला, मजदूर तंजीमों और सैकड़ों रिक्शा ड्राइवर्स ने रैली में शिरकत की है। अवामी रिक्शा यूनियन का पाक फौज से यकजहती का इजहार। लाहौर प्रेस क्लब से अमरीकी कौंसलेट तक इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली का एहतमाम। सिविल सोसाइटी, वकला, मजदूर तंजीमों और सैकड़ों रिक्शा ड्राइवर्स की रैली में शिरकत। रैली के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। रैली की क़यादत अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन मजीद गौरी ने की। मजीद गौरी ने कहा कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा हमारा फख्र हैं। हम पाक फौज के साथ डट कर खड़े हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है। फौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। ठीक है जी। हम कल इंशाअल्लाह ताला जिना हाउस जा रहे हैं। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग, वकला बरादरी और ख़वातीन, बच्चे, बेटियां, ये सब हमारे साथ वहाँ पर कल जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपनी पाक फौज से कल इज़हार यकजहती करेंगे। रैली के शुरका का कहना था कि 9 मई के वाक़यात में मुल्क का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ, जिसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हम तो एक ही लफ्ज़ करेंगे, अफसोसनाक। इन्होंने जो भी काम किया है घटिया किया है। हम पाक फौज के साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं। अगर उनको हमारी जान की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे बच्चे भी, हम मेहनत कश लोग उनके साथ हैं। मैं अवामी रक्षा यूनियन की तरफ से पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। ये जो 9 मई को वाक़या हुआ है, जिसमें GHQ, रेडियो पाकिस्तान और मुख्तलिफ पाकिस्तान की इमारत को जलाया गया है। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे।
वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लेने के लिए वाल्टन साइट का दौरा किया गया। कहते हैं कि बाब पाकिस्तान वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मनसूबा ट्रैफिक जाम, सीवरेज जैसे दरीना मसाइल हल करेगा। रिपोर्ट देखिए। सीबीडी पंजाब लिवॉर्ड की तकमील के बाद बाब पाकिस्तान वाल्टन रोड अपग्रेडेशन पर काम जारी है। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफ़ीक का वाल्टन साइट का दौरा CEO सीबीडी पंजाब इमरान अमीन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन ने तफसीली ब्रीफिंग दी। इमरान अमीन ने ब्रीफिंग में बताया कि सीबीडी फेज 1 को फेज 2 वाल्टन से मिलाने के लिए मेन कॉरिडोर बनाया जाएगा। रेलवे लाइन्स के लिए अंडरपास बनाया जाएगा। वाल्टन रोड की तोसी मेन ड्रेन से ADC नाले को भी दोबारा बनाया जाएगा। मेन ड्रेन की अपग्रेडेशन से डिफेंस वाल्टन रोड के सीवरेज मसाइल हल होंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि सीबीडी पंजाब की काबिलियत पर पूरा यकीन है। जिस तरह कलमा अंडरपास रिमॉडलिंग मंसूबा खुश असलूबी से मुकम्मल हुआ, इसको भी वैसे ही मुकम्मल करें। बाबे पाकिस्तान मंसूबा वाल्टन रोड के रहायशियों के ट्रैफिक जैम, सीवरेज जैसे दरीना मसाइल हल करेगा। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफ़ीक का मजीद कहना था कि उम्मीद है कि सीबीडी पंजाब इस मंसूबे को वजीर आज़म की हिदायत के मुताबिक बर वक्त मुकम्मल करेगा। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। तो महंगाई के हवाले से खबर यह है कि महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। सरकारी रेडिस में 4 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गई हैं। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स फरोख्त जारी है, जबकि अदरक 850, लहसुन चाइना 450, प्याज 70 रुपये किलो तक फरोख्त है। सेब 480 रुपये किलो, केला 440 रुपये दर्जन तक बिकने लगा है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, कहिएगा क्या भाव ताव हैं आज मार्केट में? आज बिल्कुल आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी महकमा जारी किया गया, उसमें 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि दीगर सब्जियां भी जो है वो सरकारी महकमाओं के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। आज प्याज 48 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया सरकारी रेलिस में, लेकिन मार्केट में 70 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह टमाटर जो है वो 33 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन 50 रुपये फी किलो तक। लहसुन चाइना 335 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 450 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक 740 के बरक्स 850 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लीमू की कीमत में आज 10 रुपये का इजाफा किया गया, 310 रुपये सरकारी रेलिस में कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 500 रुपये फी किलो तक लीमू की फरोख्त की जा रही है। आलू 4 रुपये महंगा करके 70 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में यही आलू जो है वो 90 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मेथी 5 रुपये बढ़ाकर 150 रुपये सरकारी रेलिस में आज मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में मेथी की फरोख्त 200 से 230 रुपये फी किलो तक की जा रही है। जबकि फूल गोभी 74 रुपये मुकर्रर की गई है, फरोख्त जो है वो 100 रुपये फी किलो तक की जा रही। करेले 100 के बरक्स 130 रुपये फी किलो तक मार्केट में फरोख्त किए जा रहे हैं। भिंडी 110 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन फरोख्त 150 रुपये फी किलो तक की जा रही है। अरवी 230 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन फरोख्त 300 रुपये फी किलो तक की जा रही है। मटर 10 रुपये आज महंगे करके 250 रुपये मुकर्रर किए गए सरकारी रेट में, लेकिन मार्केट में मटर जो है वो 360 से 370 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों की सरकारी रेट से जारी की गई, इसमें सेब काला के लिए 340 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 480 से 500 रुपये फी किलो तक दर्जा अव्वल का सेब काला के लिए फरोख्त किया जा रहा है। अकेला दर्जा अव्वल 365 रुपये मुकर्रर किया गया है, मार्केट में 440 से 450 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा दोम का केला 180 के बरक्स 270 रुपये दर्जन तक मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। आड़ू 170 रुपये मुकर्रर किया गया, इसके बरक्स फरोख्त जो है 320 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। इसी तरह आम का सीजन जो है मार्केट में आ चुका है, और लेकिन आम की कीमतें भी शहरियों से सरकारी रेट के बरक्स महंगे की वसूल की जा रही है। आम सहारनी 135 रुपये मुकर्रर किया गया, मार्केट में 280 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आम सिमरी 200 रुपये सरकारी रेट में आज की कीमत है, लेकिन मार्केट में आम सिमरी जो है 380 से 400 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी महकमाओं के बरक्स मार्केट और शहर की सब्जी मंडियों में शायद वसूल की जा रही है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने का अब्दुल कादिर। हफ्ते भर की मजमूई शरह महंगाई में मामूली कमी आई है। रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती महंगाई ने इस कमी को फीका रखा है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.16% कमी वाक़या हुई, जबकि इसके बावजूद हफ्ते के दौरान 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा भी हुआ है। फ़हद अमीन रिपोर्ट करें।
हफ्ता भर की मजमूई शरह महंगाई में मामूली कमी के बावजूद गर्मी की लहर के साथ साथ महंगाई की लहर में भी तेजी है। हालिया हफ्ते 23 अशिया ज़रूरिया महंगी, 13 सस्ती, जबकि 15 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चिकन, चाय की पत्ती, अंडे, टमाटर, आलू, दही, दाल माश, दाल मूंग, बीफ, मटन, खुला दूध, खुश्क दूध और बासमती टोटा चावल समेत बुनियादी जरूरियात जिंदगी की 23 अशिया महंगी हुई। प्याज, लहसुन, LPG, आटा, वेजिटेबल, घी, चीनी, दाल, मसूर दाल, चना, सरसों के तेल और पेट्रोलियम मसनूआत समेत 13 अशिया की कीमतों में कमी आई और 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। एक हफ्ते में दीगर अशिया के साथ साथ चिकन की कीमतों में 7.51% इजाफा हुआ। आदादो शुमार के मुताबिक सालाना बुनियादों पर 17,732 रुपये माहाना तक आमदनी रखने वाले तबके के लिए महंगाई की शरह में 41.67%, जबकि 44,176 रुपये माहाना से ज्यादा आमदनी रखने वाले तबके के लिए महंगाई की शरह 47.09% रही। वफाकी इदारे शुमारियात की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह कम होकर 45.72% की सतह पर आई है। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। कपास की कम अज़ कम इमदादी कीमत 8,500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की गई है। निगरान वज़ीर पंजाब का कपास की ज़्यादा पैदावार हासिल करने वाले काश्तकारों को नकद इनामात देने का फैसला किया है। मोहसिन नकवी कहते हैं कि कपास की फसल सूबे और काश्तकारों के लिए मुआशी तौर पर गेम चेंजर साबित हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में कपास की बुवाई के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी की कपास की बुवाई और पैदावार का टारगेट हर सूरत हासिल करने की हिदायत। इजलास में फैसला किया गया कि कपास के काश्तकारों को पानी, बीज, खाद समेत किसी चीज की कमी नहीं आने दी जाएगी। सूबे भर में जाली अद्वियात और बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई मजीद मौसर बनाने की हिदायत भी की गई। इजलास में सैटेलाइट के जरिए क्रॉप सर्वे की तजवीज भी दी गई है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ये भी कहा कि कपास की कम अज कम इमदादी कीमत 8,500 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। कपास की ज्यादा पैदावार हासिल करने वाले काश्तकारों को नकद इनामात दिए जाएंगे। कपास की बुवाई का हदफ हासिल करने पर मुतालिका अमले की भी हौसला अफजाई की जाएगी। पंजाब में कपास की बुवाई का हदफ हासिल करना हमारा मिशन है। निगरान वज़ीर आला ने सूबे भर में पानी चोरी के वाक़यात की रोकथाम का भी हुक्म दिया। इजलास में मारूफ सनतकार और अपटमा रहनुमा गोहरी जाज, फवाद मुख्तार, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी ज़राअत, खजाना, आबपाशी और महकमा ज़राअत के हुकाम ने शिरकत की। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। LDA का नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पहली बार माली साल खत्म होने से कबल 6 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी कर ली गई है। मुस्तकिल और सालाना कमर्शलाइजेशन फीस की मद में 1,263 अमलाक से रकम वसूल की गई है। LDA की तारीख में पहली बार रिकॉर्ड रिकवरी और वसूलियाँ। रवा माली साल 2022-23 में कमर्शलाइजेशन फीस नादहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन। शोबा टाउन प्लानिंग ने 6 अरब रुपए का रिकवरी टारगेट पूरा कर लिया। चीफ टाउन प्लानर शकील अंजुम मिन्हास ने 2 माह में मजीद 4 अरब रुपए का टारगेट दे दिया। गुज़श्ता बरसों में शोबा टाउन प्लानिंग कमर्शलाइजेशन फीस का हदफ अबूर न कर सका। शोबा टाउन प्लानिंग ने मुस्तकिल कमर्शलाइजेशन फीस की मद में 3 अरब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा रिकवरी की। सालाना कमर्शलाइजेशन फीस की मद में 46 करोड़ 56 लाख रुपए वसूल किए गए। जुर्मानों की मद में 1 अरब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा रिकवरी की गई। मुस्तकिल कमर्शलाइजेशन फीस की मद में 542, सालाना कमर्शलाइजेशन फीस की मद में 721 इमलाक और 6,432 इमलाक से जुर्माने वसूल किए गए। और उधर गुलशन रावी का इलाका ख्वाजा फरीद रोड इंतजामिया की नज़रों से ओझल है। खस्ताहाल सड़क इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगी है। दुकानों के सामने तजावज़ात की भरमार है, जबकि राहगीरों और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। गुलशन रावी के इलाके में भी सड़कों की अबतर सूरत हाल। ख्वाजा फरीद रोड टूट फूट का शिकार। सड़क पर जगह जगह गढ़ है। मकीनों की आमदरफ्त मुश्किल हो गई। इंतजामिया ने सड़क की खस्ता हाली पर आंखें बंद कर ली। खस्ता हाल ख्वाजा फरीद रोड के दोनों तरफ तजावज़ात की भी भरमार। हर दुकान के बाहर 10 से 15 फीट तक तजावज़ात कायम है। राहगीरों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मकीनों ने इंतजामिया से इलाके के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने का मुतालबा किया। कैमरामैन शब्बर जुल्फी के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। रावलपिंडी फैसलाबाद में इंसाद पोलियो मुहिम का आखिरी रोज है। 6 रोज के दौरान तीनों अजला में 40 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं। इंचार्ज पोलियो प्रोग्राम खिजर अफजाल कहते हैं कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा इंतहाई करीब है। मतलूबा टारगेट को हर मुमकिन हासिल किया जाएगा।
पोलियो के 2 कतरे नई नस्ल के मुस्तकबिल के ज़ामिन। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम का आखिरी रोज़। 6 रोज़ के दौरान तीनों अजला में 46 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 21 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। रावलपिंडी में 10 लाख और फैसलाबाद में 15 लाख से ज़ायद बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए गए। इंचार्ज पोलियो प्रोग्राम खिजर अफजाल का कहना था कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा इंतहाई करीब है, मतलूबा टारगेट को हासिल किया जाएगा। खिजर अफजाल का मजीद कहना था कि पंजाब के 12 अजला में पोलियो मुहिम का इनेकाद किया गया। 9 अजला में मुहिम का इख्तिताम पहले ही हो चुका। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। और अब खबर शामिल करते हैं डेंगू के हवाले से। तो डेंगू के खतरात मंडराने लगे हैं। 24 घंटे में डेंगू का एक कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुआ है। शहर में रवा साल अब तक डेंगू के तस्दीक शुदा 49 मरीज सामने आ चुके हैं। रवा साल इंसदाद डेंगू इक़दामात पर अमल दरामद न करने पर 397 अफराद पर FIR दर्ज करवाई जा चुकी हैं, जबकि 10,000 अफराद को डेंगू SOPs पर अमल दरामद न करने पर नोटिस जारी किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाहिद मुनीर का कहना है कि शहर में डेंगू लार्वा की अफजाइश को रोकने के लिए टीमें मुतहरिक हैं। डेंगू हॉटस्पॉट्स को मुकम्मल फोकस किया जा रहा है। लार्वा बरामद होने पर डेंगू स्प्रे भी किया जा रहा है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पुलिस फोर्स की फलाह बहबूद के लिए कोशा है। पुलिस वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी ने 23 एहलकारों को तिब्बी अखराजात के लिए 61 लाख रुपए से ज़ायद रकम जारी कर दी है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस की फलाह बहबूद के लिए आसान इकदाम सामने आया। पुलिस वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी ने 23 एहलकारों को तिब्बी अखराजात के लिए 61 लाख रुपए से ज़ायद रकम जारी कर दी है। मज़कूरा रकम लाहौर, सरगोदा, जंग, मुल्तान, रावलपिंडी और विहाड़ी समेत दीगर अजला के एहलकारों को तिब्बी अखराजात के लिए दी गई है। DIG वेलफेयर गाजी सलाउद्दीन का कहना है कि IG पंजाब की हिदायत पर वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी के इजलास बाकायदगी से मुनक्कद हो रहे हैं। फोर्स की बेहतरी और वेलफेयर के लिए सुबह भर से आने वाली दरख्वास्तों पर एहलकारों को बिला ताख़ीर हर मुमकिन रिलीफ दिया जाता है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मियां अस्पताल लाहौर भी आमद हुई है। डॉक्टर उस्मान अनवर ने अस्पताल में ज़ेर इलाज मियां वाली के गाजी इंस्पेक्टर इकबाल खान की अयादत की है। गाजी इंस्पेक्टर इकबाल खान को वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के मियां वाली दौरा के बाद लाहौर मियां अस्पताल मुंतकिल किया गया था। IG पंजाब ने इंस्पेक्टर इकबाल खान को गले लगाया, प्यार किया, खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। IG पंजाब ने एडिशनल MS मियां अस्पताल डॉक्टर गुलाम फरीद से इंस्पेक्टर इकबाल खान के इलाज मुआवजे बारे आगाही हासिल की है। इंस्पेक्टर इकबाल खान इश्तहारी डाकुओं पर रेड के दौरान जिस्म पर गोलियां लगने से जख्मी हुए थे। बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के सालसी हल से मुतालिक 2 रोज़ा जुडिशल कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पज़ीर हो चुकी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी कहते हैं कि जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट समेत सूबाई अदालतों के जजेस और स्टेक होल्डर्स शरीक हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि रियासत जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए साजगार माहौल की फराहमी यकीनी बनाए। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि CPAC प्रोजेक्ट पाकिस्तान में इनकलाबी हैसियत का हामिल है। कॉन्फ्रेंस में कानून साजी समेत इंसाफ के फौरी हल पर जोर भी दिया गया है। कुरान और सुन्नत मूवमेंट के ज़रिए तमाम सेमिनार मुनक्कद हुआ है। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर का कहना था कि हमारी तहरीक का मकसद मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान है। मुस्लिम उम्मा की हर सतह पर इखलाकी और सियासी सतह पर हिमायत की जाएगी। सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ऐवान इकबाल में इस्तेहकाम पाकिस्तान सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर समेत दीगर उलमा और मजहबी स्कॉलर्स ने शिरकत की। दीगर शहरों से भी कसीर तादाद में शुरका सेमिनार में शरीक हुए। कायद कुरान सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने कहा कि हमारी तहरीक का मकसद इस्लाम की बालादस्ती है, उम्मत मुस्लिमा के बुनियादी मसाइल को उजागर करना और राय आमा को हमवार करना है। हज़रत अल्लामा शहीद का रास्ता हमें हक पे चलने की तरफ अंगेज करता रहा। अल्लाह के फज़ल करम से हमने दर्से शहादत को हासिल किया, दर्से शुजाअत को हासिल किया, आइन की पासदारी को हासिल किया, कानून की बालादस्ती के सबक को हासिल किया। शुरका ने तहरीक की कामयाबी के लिए भरपूर साथ निभाने का अज़्म किया। कैमरामैन बिलाल के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर कारोबार के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम उठाया गया है। पंजाब IT बोर्ड ने टेक इंडस्ट्री के इश्तराक से बिजनेस मनसूबे का आगाज़ कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक आरफा करीम टावर में मुनक़्क़दा तकरीब की सदारत पंजाब IT बोर्ड के चेयरमैन
फैसल यूसुफ ने की है, जबकि तकरीब में बिजनेस डेवलपमेंट को फ़रोग देने के लिए खुसूसी पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। चेयरमैन फैसल यूसुफ ने कहा है कि ये इकदाम PITB के निजी शोबे के साथ इश्तराक के एक नए दौर का आगाज़ है, जबकि PITB के प्रोजेक्ट्स IP पंजाब बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल समेत दीगर मनसूबों को निजी शोबे के इश्तराक से दुनिया भर में मुतारिफ करवाया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात की 72वीं सालगिरह है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन एक रोशन कल के लिए शाना बिशाना खड़े हैं। मोहसिन नकवी ने चीन के कौंसल जनरल से मुलाकात में पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 72 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी और केक भी काटा। चीनी कौंसल जनरल ने निगरान वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में तिजारती और मुआशी ताल्लुकात के फ़रोग देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा है कि हमारा रिश्ता पूरी दुनिया के ममालिक के लिए एक रोल मॉडल है। पाक चीन दोस्ती की 72वीं सालगिरह के मौके पर खुसूसी तकरीब निगरान वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम मुराद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। पाक चीन जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की जानिब से एहतमाम किया गया है। निगरान वज़ीर इब्राहिम मुराद ने कहा है कि दोनों हमसाय ममालिक में ताल्लुकात बाहमी एतमाद, दो तरफ़ा एहतराम और खैर सगाली पर मबनी है। पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। CPEC पाकिस्तान चीन के दरमियान इक़्तिसादी, तिजारती और सकाफ़ती राब्तों का सबसे मजबूत सतून है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम पंजाब मियां शकील अहमद ने भी तकरीब से खिताब किया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को हाफिज मियां नोमान ने इचरा का दौरा किया, बिजली के जारी मनसूबों का जायजा भी लिया, तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। वाइस चेयरमैन UC 68 इरफान कासिम की जानिब से ट्रांसफार्मर के तनसीब की इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई है। इस मौका पर हाफिज मियां मोहम्मद नोमान ने कहा है कि 2 माह में इचरा के लेस्को से मुतालिक तमाम मसाइल को हल कर दिया जाएगा। इफ्तिताह के मौका पर जमील गुज्जर, सगीर गुज्जर, मुजाहिद सिंधु, इसहाक, इफ्तिखार भट्ट, फाहद अब्बास कंबो और मलिक बिलाल समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। छुट्टी के रोज़ तफरीह का प्लान मंचलों ने क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड्स का रुख कर लिया है। मुगलपुरा क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट दीवानों का रश लगा रहा, जबकि गैरिफन ग्राउंड छक्कों और चौकों की आवाज़ों से गूंजता रहा। ज़ैन अली की रिपोर्ट देखिए। छुट्टी के रोज शहर की ग्राउंड्स में क्रिकेट मेला सज गया। क्रिकेट दीवानों ने बड़ी तादाद में मुगलपुरा ग्रिफन ग्राउंड का रुख किया। ग्रिफन ग्राउंड में बच्चे और नौजवान क्रिकेट खेलने में मसरूफ रहे। चौके और सिक्के पर खुशी का इजहार तो आउट होने पर नोक झोंक भी देखने को मिली। बल्लेबाजों ने अपनी महारत का मुजाहरा किया तो बॉलर्स ने भी खूब जान लड़ाई। क्रिकेट लवर्स ने कहा कि पूरा हफ्ता वक्त नहीं मिलता, इतवार को क्रिकेट खेल कर छुट्टी का मजा दुबाला करते हैं। हुकूमत को यही कह सकते हैं कि ग्राउंड अच्छा कर दे, विकेटें बना दे, क्योंकि खेलने के लिए जगह नहीं है। अब मज़ा नहीं आता इधर खेलने का, छोटी सी ग्राउंड है, जंगले आ जाते हैं बीच में। हुकूमत से गुजारिश है कि हमें खेलने के लिए ग्राउंड दे। नौजवानों ने शहर में मजीद क्रिकेट ग्राउंड मुहैया करने का मुतालबा किया। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बर्फ़, मशरूबात और तरबूज का इस्तेमाल बढ़ चुका है। बर्फ़ की तलब बढ़ते ही ब्लॉक की कीमत 1000 रुपये से ज़्यादा हो गई है, जबकि मंचलों ने गर्मी भगाने के लिए जूस पॉइंट्स का रुख किया। वहीं मार्केट में तरबूज की फरोख्त भी बढ़ गई है। रहील अली की रिपोर्ट देखिए। सूरज के तेवर दिखाते ही शहरी गर्मी से निढाल बर्फ, मशरूबात और तरबूज का बढ़ गया इस्तेमाल। दुकानदारों की भी चांदी हो गई। गर्मी बढ़ने के साथ साथ बर्फ की तलब में भी इजाफा। दुकानदारों ने कीमतें बढ़ा दी। बर्फ के ब्लॉक की कीमत 1000 रुपए से ज्यादा हो गई। दुकानदारों का कहना था कि बिजली समेत हर चीज की कीमत में इजाफा हो चुका। खरीदार कहते हैं अब तो ठंडा पानी पीना भी मुश्किल हो गया। बर्फ बहुत महंगी हो गई। गरीब आदमी तो पानी भी नहीं पी सकते, गर्म पानी पीते, गर्म पानी किधर पी सकते, वो बर्फ लेके आते हैं, वो बहुत महंगा है। शहरी गर्मी भगाने के लिए ठंडे मशरूबात को तरजीह देने लगे। संदल, बादाम समेत दीगर इकसाम के मशरूबात की मांग बढ़ गई। ठंडे ठार मशरूबात से न सिर्फ गर्मी भगाते हैं बल्कि भरपूर लुत्फ भी उठाते हैं। शहरियों का कहना था कि गर्मी में मशरूबात तवानाई फराहम करते हैं। गर्मी के लिए बचाने के लिए ये कि मफीज है और मैदे के लिए भी अच्छा है, और जो गर्मी के वो ठंडक वो खत्म हो जाए। जो बादाम वाला और संदल वाला, जाहिर बात आ रहे हैं सड़क पर तपिश भी बहुत ज़्यादा है, इस हवाले से इसका फ़ायदा भी है, ज़रा इंसान की एनर्जी में इजाफा हो जाता है। दूसरी जानिब बादामी बाग फल मंडी में तरबूज के ट्रक हाथों हाथ बिकने लगे। आड़तियों का कहना है कि 1 माह कबल रोजाना 2 से 3 ट्रक बेचते थे। गर्मी में इजाफे के बाद रोजाना 4 से 5 ट्रक बेचते हैं। तरबूज का एक ट्रक 3 से 4 लाख रुपए तक बिक जाता है। गुज़िश्ता साल तरबूज के एक ट्रक की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए थी। रमा साल तरबूज की पैदावार में भी कमी आई है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ राहिल अली, लाहौर न्यूज़।
तो छुट्टी के रोज गर्मी से बेहाल लाहौरियों ने नहर पर डेरे जमा लिए हैं। नहर में नहाने पर पाबंदी को भी पानी में बहा दिया। मंचलों ने नहर के ठंडे ठंडे पानी में खूब डुबकियां लगाई। शहरी कहते हैं कि सस्ती तफरीह के लिए यहाँ भी ना आए तो कहाँ जाएं। सूरज का पारा हाई गर्मी लाहौरियों को नहर पर खींच लाई। छुट्टी के रोज मंचलों ने नहर पर डेरे जमा लिए। छोटे बड़े सभी नहर के ठंडे पानी में डुबकियां लगाते रहे। बास मंचले मौज मस्ती करते दिखाई दिए और दरख्तों पर चढ़कर नहर में कूदकर करतब दिखाए। कुछ लोग नहर के पानी में पांव डुबोकर गर्मी को दूर भगाते रहे। लाहौर केनाल पर आए आवाम का कहना कि गर्मी की सूरत हाल देखकर दोस्तों के साथ नहर पर आने का प्लान बन गया। नहर में नहाकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। नहाने आए इधर, इंजॉय कर रहे हैं, खाना भी खाया, मजे कर रहे हैं। गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, दोस्तों के साथ प्लान में ना तो हम यहाँ नहाने आ गए हैं। लाहौरियों ने ज़िला इंतजामिया की जानिब से नहर में नहाने पर पाबंदी की भी परवाह न की। उनका कहना है कि ये सस्ती तफरीह है, यहाँ भी ना आए तो कहाँ जाएं। कैमरामैन उमर फजल के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। वक्त के थपेड़ों से मार सहते सहते खस्ता हाल हो जाने वाले मुगलादे खूह के आसार बहाल कर दिए गए हैं। अदरून शहर लाहौर में वाक़ई ये कुआं 1857 में मफाद आमा के लिए खोदा गया था। कुएं को कमरों में ठंडक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तफसीलात देखिए सुहेल कैसर की रिपोर्ट में। एक रोज़ मुंशी निज़ामुद्दीन को ख्याल आया कि उनके मोहल्ले कूचा दर्जिया में लोगों को पीने के पानी की कमी का सामना रहता है। इस सोच का आना था कि उन्होंने अपनी रहायशगाह के बैरूनी हिस्से में एक कुआं खुदवा दिया। छोटी ईंट से तामीर किए गए इस कुएं से पानी तो हासिल किया ही जाता था, साथ ही इसकी ठंडक से कमरों को भी ठंडा रखने का इंतजाम किया गया था। आज इस कुएं की तामीर को 166 बरस बीत चुके हैं। ये हमारा बाइक घर नहीं है, ये हमने बाइक इसको खरीदा था। हम लोगों ने इसको खरीदा था 1992 में। तो जब इसकी रजिस्ट्री के पेपर तैयार होने थे तो इनके पास एक बाइक खाता था और ये फ़र्द जो लेके आते थे उसमें इसका जो इंदराज था वो 1857 था। वाल सिटी के आने से ही तो ये फिर बचा रहा और फिर अल्लाह ने बचा ही लिया इसको। दिल्ली दरवाजे की मशहूर सुरजन गली के करीब ही वाक़या मुगलादा ये खूह मिटने के करीब पहुंच गया था, लेकिन इसकी खुशकिस्मती रही कि ये मुतल्लका इदारों की नज़रों में आ गया, जिसके बाद इसके बचे खुचे आसार को बचाकर आइंदा नस्लों के लिए महफूज कर लिया गया है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए लाहौर न्यूज़।